Hello everyone. So today we are going to start chapter number 13, probability. This is first lecture, and as you know that probability has been also discussed in your previous standards. आप 11th में भी कर चुके हो. So we'll start with topic number 13.2, and whenever the fundamentals of your previous standards are required, so we'll repeat it as and when required. So 13.2 topic is conditional probability, एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाई सम एग्जाम्पल. तो पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम इसकी जो डेफिनेशन है उसके बारे में बात करेंगे. सो let us consider an experiment of tossing three fair coins. Okay, so as we know, when we are tossing a coin, so it has only two possibilities: either it can be head or it can be tail. Okay, बट ओवर हियर वी आर टॉसिंग थ्री कॉइन्स, राइट. हम यहाँ पे तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं. एंड इफ़ आई विश टू राइट डाउन इट्स सैम्पल स्पेस. ओके, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस हम सबसे पहले लिख रहे हैं. सो इट इज़ टू बी डिनोटेड as s, and then after we'll put it in a curly bracket. Okay, now as we are tossing three coins, so it has three possibilities. Okay, so I'm putting it one by one. So first combination which is possible is h h h. Okay, how many points will be there, how many possibilities are there? So as you can see, h and t, so there are two possible outcomes for each coin, and we are doing it for 3 times, so it will be 2 raised to 3, and that is how there are 8 possible outcomes. तो मुझे यहाँ पे टोटल 8 पॉइंट्स चाहिए, 8 सैम्पल पॉइंट्स यहाँ पे होने चाहिए, राइट. सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज एच एच एच, मतलब के कॉइन टॉस किए, तीनों कॉइन में सिर्फ हेड ही आया है, सो दैट इज दिस. Then after, another possible combination can be HHT, then we can have HTH, we can have HTT, and then we can have THH, or we can have TTT. So these are the various possible combinations there. Okay, तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने कॉम्बिनेशन हुए हैं. अभी और दो कॉम्बिनेशन बाकी है, सो दैट इज टी एच टी, एंड द लास्ट वन इज टी टी एच. ओके, so this is how I can write it down. Okay, now if I want to find out the probability for each sample point, इसमें से कोई भी एक आए उसकी probability क्या है. So we know that number of possible outcomes are 8. इस sample space में total 8 possible outcomes है. Out of them किसी एक के आने के क्या chances है? So it will be 1 by 8. Okay, so this is what you know from your class 11. Okay, तो ये हम अभी basic discuss कर रहे हैं. Okay, now let E be the event. Okay, at least two heads appear. Okay, तो यहाँ पे ये एक ऐसी इवेंट है जिसमें हम थ्री कॉइन को टॉस कर रहे हैं और उसमें से दो ऐसे आए कि जिसमें हेड हो. ओके, और तीसरा है वो हेड हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. सो इफ आई वांट टू राइट डाउन द सैम्पल स्पेस फॉर दिस, then E equals to, I'll start with curly bracket, and then after let us say we have to write it from this only. Okay, यहाँ से हमें बिल्कुल सिंपल काम करना है कि आपको ढूंढना है कि टू हेड वाले कॉम्बिनेशंस कितने हैं. तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखूंगा, सो इट विल बी एच एच एच. तो एज यू कैन सी देर आर थ्री हेड्स, तो एटलीस्ट टू हेड वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है. Then after I can see that the second one, that is HHT, so again there are two heads, so I have written it, right. Then after there is HTH, so again two heads are there, ये हम नहीं ले सकते हैं HTT. Next is the THH, so that is what we have considered, and rest of all like triple T, कोई एच नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक ही एच है, यहाँ पे भी सिर्फ एक एच है. सो दैट आई वॉन्ट कंसिडर. सो एज यू कैन सी दिस गिव्स मी द सैम्पल स्पेस ऑफ इवेंट ई इन विच एटलीस्ट टू हेड्स आर देयर, नॉट मोर देन दैट. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर अनदर इवेंट. दूसरी एक इवेंट है जिसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं. इन एफ लेट अस से इट इज फर्स्ट कॉइन शोज टेल. ओके,
तो 3 कॉइन्स है, उसमें से जो फर्स्ट वाला है, अभी हम ये जो फर्स्ट कॉइन किसको बोलेंगे, तीनों तो सेम है लेकिन आप कोई भी आर्बिटरी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखो तो फर्स्ट कॉइन मैं इसको बोलता हूँ, यहाँ से मैं, दिस इज माय फर्स्ट कॉइन, सेकंड एंड थर्ड कॉइन। ओके, तो फर्स्ट कॉइन इज टेल, ये वाला कॉम्बिनेशन। सो अगेन आई हैव टू लुक इनटू दिस सैंपल स्पेस और उसमें से मुझे इवेंट एफ का स्पेस अलग से लिखना है, राइट। ओके, तो देखो यहाँ पे टी कहाँ पहले आता है। ओके, सो फर्स्ट लाइन में टी कहीं पे पहले नहीं है, सो आई वोंट कंसिडर ऑल दिस। ओके, यहाँ पे टी फर्स्ट है, सो आई कैन कंसिडर दैट इट इज टी एच एच। सेकंड वन इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज ट्रिपल टी। देन थर्ड इज टी एच टी, इसमें भी टेल है वो फर्स्ट है। एंड नेक्स्ट इज टी टी एच। ओके, so as you can see we have successfully understand how to write down the sample space for various events. Okay, now let us try to find out the probability. Okay, once again I am repeating that के इसमें से कोई भी इवेंट, कोई भी एक पॉइंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो 1/8 है, वो हमें भूलना नहीं है। ओके, सो I have just repeated the sample space over here, जो हमने किया प्रीवियस पेज में वही मैंने लिखा है, सो दैट वी डोंट रिक्वायर टू टर्न द पेज। और यहाँ पे मैंने एफ बी सेम टू सेम लिखा है। ओके, सो लेट अस राइट डाउन फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे वी हैव 4 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, so I can write it like this, what is the probability of triple H will be there as outcome. Okay, or I can say what is the probability that I'll have HHT combination, or what is the probability that I'll have HTH combination, or what is the probability that I'll have THH combination. So as you can understand, probability of individual probability is over here 1/8, दिस विल ऑल्सो बी 1/8, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, एंड दैट इज हाउ इट विल बी 4/8, एंड 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2। आप चाहे तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे, कि आपके पास पॉसिबल आउटकम्स मतलब न्यूमरेटर में आपके पास 4 आएगा। ओके, एंड डिवाइड बाय आपका जो सैंपल स्पेस था वो 8 था। ओके, सो 4/8 दैट विल ऑल्सो गिव यू 1/2। सो यू कैन डू इट डायरेक्टली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। सो 1/2 इज अवर आंसर, राइट। देन आफ्टर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर इवेंट एफ। ओके, सो इफ I'll write this again same as this. Okay, same as this. Okay, then यहाँ पे भी मेरे पास 4 पॉसिबिलिटीज है। ओके, 4 पॉसिबल आउटकम्स है, सो आई कैन पुट इट लाइक दिस, इट इज 4 out of 8, एंड दैट इज हाउ इट विल गिव मी द आंसर विच इज इक्वल्स टू 1/2। अभी बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? व्हाट वाज ई? ई वाज वी हैव एटलीस्ट 2 heads. What was F? The first coin gives you tail. अभी इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आपको क्या करना है कि आपके पास 2 सैंपल स्पेस दिए हैं यहाँ पे, ई का भी है आपके पास, एफ का भी है, उसमें से कॉमन कॉमन वाला आउटकम कौन सा है? तो आप कंपेयर करो, क्या इसमें एच 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 है? नहीं है। क्या इसमें एच एच टी है? एच एच टी भी नहीं है। क्या इसमें एच टी एच है? ये भी नहीं है। ओके, क्या इसमें टी एच एच है? येस, इट हैज़ टी एच एच। तो अब देखो कि ये दोनों इवेंट्स है वो ये दोनों आउटकम्स है दोनों इवेंट्स के, वो कॉमन हो रहे हैं, एंड दैट्स हाउ आई कैन पुट इट लाइक दिस के ई इंटरसेक्शन एफ इज टी एच एच, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन पुट इट। ओके, now what is the probability of E intersection F? So I can say that it is the probability of THH, and that is how it is equals to 1/8. Individual probability इसकी 1/8 हो गई है, right? Okay. तो यहाँ तक का जो भी हमने डिस्कस किया that was related with your class 11, right? Okay. Now the new thing that we are going to discuss
is this. Let us say F, event F. What was event F? So it was first coin shows the tail. Then what is the probability of occurrence of event E? ओके, तो मान लो कि F इवेंट है वो पहले हो जाती है, तो उसके बाद E इवेंट के होने के क्या चांसेस है. ओके, सो दिस इज नोन एज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे देखो कि इफ एंड देन टाइप का कुछ आ रहा है. ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ केस ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो देखो कि सबसे पहले फर्स्ट कॉइन आपने टॉसिंग किया और उसमें जो फर्स्ट कॉइन था उसमें टेल आ गया, एंड यू नो इट्स प्रोबेबिलिटी, राइट. ओके, एंड देन आफ्टर आप फिर से फाइंड आउट कर रहे हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई. तो यहाँ पे आपका जो सैंपल स्पेस है, विच वॉज आपका जो सैंपल स्पेस था ओरिजिनली, ओके, इट वॉज दिस. ओके, बट आफ्टर doing this f occurs, okay, then your sample space reduces to f only. फिर आपका sample space है वो सिर्फ इतना ही होगा, right, because t occurs on its first coin. okay, तो उसमें से आपको ढूंढना है कि इसमें से t के बाद कौन सी इवेंट में दो हेड आ रहे हैं. तो एज यू कैन सी दैट इज ओनली दिस पॉसिबिलिटी, टी एच एच वाली पॉसिबिलिटी है. ओके, तो यहाँ पे आपको लिखना है लिखना है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स वेर देर. सो एज यू कैन सी एफ में पॉसिबल आउटकम्स कितने थे, 1 2 3 4. अभी ये आपका सैंपल स्पेस हो गया है, ये नहीं है आपका सैंपल स्पेस. ओके, तो आपका सैंपल स्पेस एफ है, एफ में पॉसिबल आउटकम्स थे वो 4 थे. उसमें से जो एप्लीकेबल है वो कौन सा है, टी एच एच वाला है. सो ओनली वन इज एप्लीकेबल, एंड दैट इज हाउ आई एम गोइंग टू पुट इट लाइक दिस, एंड दिस इज माई आंसर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट, कैसे रीड करेंगे इसको, कैसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट द इवेंट एफ हैज अकर्ड, राइट. इवेंट एफ हो चुकी है, उसके बाद ई इवेंट होने के कितने चांसेस है. सो दैट आंसर इज 1/4. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर लेते हैं. ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई is called the conditional probability of E given that F has already occurred, right. ओके, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम P ब्रैकेट E. यहाँ पे आप बोल सकते हो स्लैश, आप इसको बोल सकते हो स्लैश, आप इसको बोल सकते हो स्ट्रोक, आप इसको बोल सकते हो अपॉन. ओके, जैसे कि P ऑफ ई क्रॉस ई स्लैश एफ बोलो, या फिर बोलो ई स्ट्रोक एफ बोलो, या बोलो ई अपॉन एफ बोलो. ओके, या ई डिवाइड बाय एफ, ऐसा भी चलेगा, राइट. तो आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो, राइट. सो व्हाट आई राइट ओवर हियर, सो पी ऑफ ई स्ट्रोक एफ can be given as 1/4. That is what we have already discussed and I have written it, right. okay, तो यहाँ पे हम इसको एक दूसरे व्यू से, दूसरे एंगल से भी देखना चाहेंगे. सो दैट P ऑफ E स्ट्रोक F कैन बी गिवन एज नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स favorable to E intersection F. Okay, how many events were there in E intersection F? So we know that there was only one, right. Elementary event was one. Divide by number of elementary events which are favorable to F. F में कितनी events थी? So we know that it was 4, and that is how your answer was 1/4. तो इसी चीज़ को हम अगर छोटे इक्वेशन में लिख लें, सो n दैट इज फॉर नंबर ऑफ इवेंट्स, और से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन एफ. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. अगेन दिस थिंग इज रिपीटेड इन नेक्स्ट पेज. ओके, यहाँ पे मैंने ये फिर से लिखा है, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड इट बाय टोटल स्पेस, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस. ओके, तो मैंने सिर्फ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है. ओके,
इसी इक्वेशन को, राइट। तो ये क्या चीज है? ओके, सो एज यू कैन सी ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एंड व्हाट इज दिस? ओके, दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, सो दिस इज हाउ इट बिकम्स योर इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए, राइट। पी ऑफ ई स्लैश एफ कैन बी गिवन एज पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय पी ऑफ एफ, राइट। ओके, अच्छा, अभी इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कैन नॉट बी जीरो। ऑब्वियस बात है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ इफ इट बिकम्स जीरो देन योर आंसर कम्स टू इन्फिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है, राइट। तो इट इज टू बी कंसिडर्ड एज अनडिफाइंड। अगर ये हो गया, okay, that means it is undefined, so we have to take care about this. Probability of f cannot be zero. Okay, so let us discuss the definition now. Okay, example हमने देख लिया, representation we know, now we can define it easily, we can understand it easily. So if E and F are two events associated with the same sample space of a random experiment, दोनों के sample space same थे, right? अभी coin वाली बात की, उसमें सब same था, right? The conditional probability of the event E given that, कैसे बोलना है इसको? event E given that F has occurred, तो उसका शॉर्ट फॉर्म कैसा है? P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E स्लैश F गिवन बाय एंड द थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वहीं आपको सिर्फ लिखना है। एंड देन आफ्टर यू ऑल्सो मेंशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैन नॉट बी जीरो। ओके, ये तब भी वैलिड है, राइट। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 13.1। एक्सरसाइज नंबर 13.1 में हम सिर्फ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो भी मैंने अभी पढ़ाया उसके रिलेटेड दो न्यूमेरिकल है, सो वी विल डू दैट एंड देन आफ्टर वी विल कंक्लूड। ओके, सो